Look at the view. So the itinerary of our trip Mesmerizing Arunachal Pradesh starts at 9th of October. Day 1 will be traveling to Alipurduar. It is around 670 kilometers. From there the next day will be moving in Assam to Udalguri, and from Udalguri the route will be to Sangti Valley via Dirang, and the fourth day we will be reaching Tawang. There we'll be taking a day for our sightseeing and going to Bumla Pass Monastery and Madhuri Lake. On day 6 we'll be returning to Tejpur. We have changed our plan a little bit over here. Previously it was to return through Shergaon, but then we changed it to Tejpur for the road conditions. From Tejpur, then again another change. Instead of going to Alipurduar, we will be going to Buxar Tiger Reserve, and next day from there to home. And the last stretch of our journey will be a big challenge, traveling 678 kilometers around. Anyway, let's start. So today the date is 9th of October 2024, and it's morning around 4:40. We are ready to start our journey. Let me show you the whole setup which we have built up to start. So this is our bike, Himalayan 450. Look at the setup, it's almost packed and ready. Our first stop today will be Alipurduar. In between we'll be taking some halts. Our bike Monster is ready. So we have begun our journey. Time is 4:52. We are too late this time. अच्छा खासा देरी हो गया, क्योंकि पिछले बार मई में जब हम लोग नॉर्थ बंगाल गए थे तब करीबन हम लोग 4:30 बजे निकल गए थे. इस बार थोड़ी देरी हो गई, बट होप विल मैनेज ऑन द वे एंड रीच ऑन टाइम. The problem is this time our destination is also a bit ahead, not ahead, but bit longer than Shiliguri. We'll be going towards Alipurduar, and we just hope we'll make up the time, and let's enjoy the ride in the early morning of an autumn. चलिए देखते हैं, उम्मीद है हम लोग टाइम तक पहुंच जाएंगे. जस्ट लुक एट द सीन. सुबह का समय है और भोर, जस्ट आसमान को देखिए और कुछ नहीं. रंगों की इन छटाओं को देखे तो बस चुप्पी साधने का मन करता है. सो अभी हम JIS कल्याणी के सामने से मुड़ गए हैं, और वहाँ से हम फिर एम्स के रास्ते से नेशनल हाईवे 12, जिसको पहले नेशनल हाईवे 34 कहा जाता था, उसकी तरफ मुड़ जाएंगे, और फिर वहाँ से आगे हम अपना रास्ता सीधा तय करेंगे. We are about to reach National Highway 34, or erstwhile 34. Now it is renamed as National Highway 12. सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम अपने पहले मुकाम तक पहुंचने वाले हैं. नेशनल हाईवे पे पहुंचने के बाद करीबन अभी बहुत ही लंबा जर्नी सीधा जाना है हमको.
सिर्फ सीधा इसी हाईवे को पकड़ के हम फरक्का, फिर मालदा, रायगंज, ये सब क्रॉस करते हुए अभी तो पहला स्टॉप फिर कृष्णनगर पड़ेगा। चलो, कृष्णनगर के बाद फिर हम रुकेंगे। बेथवा डोरी बोल के एक जगह है, वहाँ से एक जंगल शुरू होता है। तो जस्ट वो टोल टैक्स पार करने के बाद वहाँ पे पिछले बार हम लोग एक चाय के दुकान पे रुक के चाय पिए थे। प्लानिंग तो फिलहाल वही है कि वहीं पे रुक के हम लोग चाय पियेंगे। चलिए देखते हैं कितना बजे तक पहुँचते हैं। पिछले बार हम लोग करीबन 6 बजे पहुँच गए थे। अभी हमारे पास 30 मिनट है। सो अगर 30 मिनट में पहुँच जाते हैं तो फिर मतलब यही है कि हम लोगों ने टाइम जो लॉस हुआ है वो मेकअप कर लेंगे। मेकअप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज प्लान्स थोड़े अलग हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोग शिलीगुड़ी से भी आगे जा रहे हैं अलीपुरद्वार, जो कि करीबन 2-2.5 घंटे और जाना पड़ता है। फिर उसके बाद शिलीगुड़ी में भी एक हॉल्ट करने का प्लान है। वहाँ पे लुक at the view. The sun is rising. It's a bright orange color. मुझे देख के ना वो बचपन का वो कहानी याद आ रहा है, जब हनुमान जी ने देखा था सूरज को और उनको देख के लगा था कि एक पका आम है। अब समझ में आ रहा है सूरज कैसे पका आम लगता है। जस्ट लुक एट दिस व्यू। एंड द रोड्स आर क्वाइट गुड। विद दिस व्यू इट्स mesmerizing. And the name of our trip this time is also Mesmerizing Arunachal. I feel like welcoming everyone again. So, welcome everyone to the Mesmerizing Arunachal episode 1. Today we are traveling from our home in Triveni to Alipurduar. Right now the time is 5:47 or 5:50 and we are not yet at Krishnanagar. We are just enjoying the view and taking our time, not going too fast. This time we are well prepared and we were amateurs in the last trip, but this time we have learned our lesson. बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। सो अभी आराम से हमारा रिकॉर्डिंग करते हुए हम पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। So time now is exactly 6:58. We reached around 10-15 minutes ago to Bethwa Dori. This exactly वही जगह है जहाँ पे पिछले बार हम रुके थे, वही चाय की दुकान। यहाँ पे करीबन अभी 10-15 मिनट और रुकेंगे, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। पिछले बार की समय से हम थोड़ा लेट है, करीबन आधा घंटा लेट चल रहे हैं। ये देखिए, जिस टोल प्लाजा जो बेथवा डोरी का टोल प्लाजा है वहीं क्रॉस करके एकदम पहला चाय का दुकान जो है वहीं पे हम रुकते हैं। पिछले बार भी रुके थे तो इस बार भी रुके हैं। तो क्या होता एक्चुअली होता ये है कि एक टाइम रेफरेंस मिल जाता है उससे।
जो समझने में बड़ा आसान होता है कि कितने स्पीड से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो बेंचमार्क के हिसाब से हम पहली बार को पकड़ लिया है। ओके, लेट्स सी, यहाँ से फिर निकल के फिर मिलते हैं। So around 15 minutes ago we left Bethwadori tea shop, and then now ahead. Next planning is will not stop anywhere between, but after crossing Farakka we may take a tea break, and we'll maintain this same speed this time, as my partner was saying, my wife, that we are moving a little bit casual. इस बार हम थोड़ा ढील दे रहे हैं चलने में। पिछले बार जैसे एक्चुअली इंटरकॉम नहीं था और थोड़े एमेच्योर थे, सो थोड़ी जल्दबाजी में जा रहे थे, टाइम कवर करना था, तो राइड का मज़ा जो होता है वो उतना एंजॉय नहीं किए थे, बस डेस्टिनेशन पहुंचने की जल्दी थी। लेकिन इस बार थोड़ा एक्सपीरियंस तो बड़ा है। आई विल नॉट से वी आर प्रो राइडर और एनीथिंग, वो प्रो का पी भी नहीं बने हम, बट थोड़ी एक्सपीरियंस तो गैदर की है। और अभी फ़िलहाल टारगेट ये है कि फरक्का पहुंचना है, फिर उसके बाद टी ब्रेक लेना है, और फरक्का के बाद नेक्स्ट स्टॉप हम देंगे मालदा के आसपास। वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर रायगंज के वहाँ पे रुकना है कि नहीं रुकना है वो बाद में डिसाइड कर लेंगे चलते हुए। और जैसे मैंने कहा था, मेरे एक दोस्त ने इनविटेशन दिया है मुझे शिलीगुड़ी में आज लंच के लिए। अगर शिलीगुड़ी हम लोग टाइम पे पहुँच जाते हैं तो लंच कर लेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से जल्दी में निकलना है क्योंकि अलीपुर द्वार भी पहुँचना है। वैसे उतना दिक्कत नहीं होगा टाइम का क्योंकि इस बार प्रॉपर लाइट सेटअप भी लगा लिया है। पिछले बार भी लाइट था लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, इस बार उतना दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी मतलब अपने सामने प्रॉपर जीपीएस सिस्टम भी मैंने माउंट कर लिया, जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन में। सॉरी, जीपीएस सिस्टम नहीं, बट द चीप जुगाड़ ऑफ जीपीएस सिस्टम। एक पुराना फ़ोन पड़ा हुआ था घर पे फैमिली मेम्बर्स के पास, तो वो लेके उसमें जो मेरा स्पेयर एक वाईफाई का सिम था उसको उसमें डाल के बस हो गया मेरा जीपीएस माउंट सस्ते में। सो अपना मोस्ट ऑफ द चीज़ें ही यहाँ पे मेरे सेटअप में, नहीं मोस्ट ऑफ द नहीं, 2 चीज़ें जुगाड़ के, बाकी सब ठीक ठाक ही है, खरीदे हुए है या फिर प्रॉपर तरीके से ही बनाया हुआ है। जो जुगाड़ है, जो हाइड्रेशन पैक होता है, वो जुगाड़ का चीज़ है, और बढ़िया जुगाड़ है। ऐसा जुगाड़ लगा है कि वो जो हाइड्रेशन ओरिजिनल वाला जो ऑनलाइन में या दुकानों में मिलता है ना, उससे भी बेटर है। क्योंकि हमने क्या किया है, 2 बड़े बड़े बोतल लिए हैं और ढक्कन में छेद करके अब उसमें जो एक्वेरियम का ट्यूब होता है ना, जो फिल्टर का पतला सा पाइप होता है, वो उसमें डाल दिया है लंबा करके। अब एक सिरा आपका बोतल के अंदर और दूसरा सिरा मेरे हेलमेट के अंदर से आते हुए वो मेरे चिन तक आ रहा है। अब ये प्रॉपर सेटअप मतलब सही जगह पे बैठा हुआ है, क्योंकि मेरे चिन कुशन जो है वहाँ से वो, और चीक कुशन जो हेलमेट का है वो सपोर्ट दे रहा है इसको, तो ये जगह से भी नहीं हिल रहा है। अब होता ये है कि जब भी मुझे पानी पीना है, मैं जस्ट पाइप को अपने मुंह के अंदर लेके खींच ले रहा हूँ। अब बेटर क्यों है ये मैं बताता हूँ, क्योंकि दूसरे आपका जो हाइड्रेशन बैग मिलता है उसमें पाइप तो होता है, बेटर सेटअप होता है, बहुत दिखता अच्छा है, लेकिन उसमें आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है, आपको अपना हेलमेट उतारना पड़ता है, फिर उसके बाद आप पानी पी सकते हो। जो हमने पिछले बार किया था पिछले राइड में, कि ऐसा जुगाड़ ये जो पाइप वाला लगाया था कि हम लोगों बहुत कम स्टॉप लिए थे और कंटिन्यूस हम पानी पीते रहे। सो हाइड्रेशन का हाइड्रेशन
और टाइम पे भी पहुंच जा रहे थे। इसी वजह से हम पिछले बार 9 घंटे में सिलीगुड़ी कवर कर लिए थे। एनीवे देखते हैं, इस बार थोड़ा स्लो जा रहे हैं, रिलैक्स जा रहे हैं एक्चुअली। तो यही है, अगला पड़ाव तो है हमारा फरक्का, फिर वहाँ पहुँच के बात करते हैं। चलिए, ऑन द वे टू फरक्का, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्ट्रेच ऑफ रोड्स। जस्ट लुक एट दिस, it's after crossing Bahrampur, or I may be wrong, but this is Bahrampur. This is a beautiful stretch. We are a little bit behind schedule, otherwise I would have stopped and taken some drone shots here. There are some potholes over here. पिछले बार जब आए थे मुझे याद है ये रास्ता एकदम करीबन 100 से ऊपर चलाने लायक था, बट इस बार there are some noticeable small potholes. I didn't say they are big, but small potholes. And look at the man-made marvel. In the morning we saw the beautiful natural scenery. But now look at this. It's a beauty. As I was saying कि पिछले बार इस रास्ते से जब गुजरे थे बड़ा ही अच्छा, एकदम छोटे मोटे देखे पैचेस भी दिख रहे हैं, पैच वर्क दिख रहे हैं। तो रास्ते को रिपेयर किया गया है, ऐसा नहीं है कि खाली बस फेंक दिया गया है, मतलब ऐसा ही छोड़ दिया गया है, रिपेयर वर्क हुआ है। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि इस रास्ते से 100 से नीचे के स्पीड में चलाए तो ही बेटर होगा। देखिए ये सब पैचेस पिछले बार नहीं थे। जो भी हो, एक चीज़ अच्छा है कि रिपेयर वर्क तो चल रहा है। और करीबन 100 किलोमीटर फरक्का, तो हमें शायद 2 घंटे, हाँ 2 घंटे लग जाएंगे। इस बार बहुत ही लेट चल रहे हैं फरक्का, 2 घंटे मतलब 10 बजे। पिछले बार हम मालदा पहुंचे थे 10:30 के करीब। देखते हैं कितना मैनेज कर सकते हैं, कितना मेकअप कर लेंगे। फिलहाल तो आप उस सुंदर नज़ारे का लुत्फ उठाइए। अचानक से आप अगर हरियाली वाले पार्ट को अगर ना देखें तो मतलब लगेगा जैसे सी बीच पहुंच गया हूँ। एक्चुअली ये ओशन ही है, दूर दूर तक जहाँ तक आप देख सकते हो तो खेत ही खेत है। फरक्का में रुक के अभी शिव ढाबा में खाने का प्लान है। पराठा ऑर्डर किया है
बिकॉज लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस से पता है कि आपका मालदा के उधर प्रॉपर होटल नहीं मिलता, मालदा के उधर प्रॉपर होटल्स नहीं मिलता है, तो इस वजह से यहीं पे खाने का डिसाइड किया. लेट्स सी. फॉर द अपडेट्स आई विल गिव यू लेटर. अभी देख ही सकते हैं कि फरक्का बैरेज क्रॉस कर रहे हैं और एक बीच में हमारे साथ छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था. नॉट एक्सीडेंट, काइंड ऑफ गाड़ी लेके गिर गए थे. सो ये वाला मिरर लूज हो गया है. कहीं चोट वोट कुछ नहीं आया है, थैंक्स टू द बाइक एंड आवर प्रोटेक्शन गियर्स. कुछ चोट तो नहीं आया, बट बाइक का बस ये वाला लूज हो गया है. एक्चुअली हुआ ये था कि एक सिग्नल पे गाड़ी रोकनी पड़ी थी और साइड में गड्ढा था, तो टायर गड्ढे पे नहीं था, बट मेरा जब गाड़ी रोकना था तो बैलेंस के लिए जब पैर रखा तो कोई सपोर्ट नहीं मिला, गड्ढे में पैर था, तो गाड़ी छोड़ देनी पड़ी. तो इसी तरीके से छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया. अभी फ़िलहाल तो एक गैराज खोज रहा है. जैसे मैंने बताया कि हम लोग शिव ढाबे में आलू पराठा का ऑर्डर दिए थे, वो खा के अभी निकल चुके हैं. टाइम बज रहा है 10:43 और 10:43. चलिए, लेट ही जब पहुंचना है तो थोड़ा आराम आराम से ही जाते हैं, हड़बड़ी करने का कोई मतलब नहीं बनता है. हाँ, सो यही है दिक्कत. बस गैराज मिल जाए फिर टाइट करके निकल देंगे अपने पुराने स्पीड में. सो थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए रुके हैं. मालदा क्रॉस कर चुके हैं, रायगंज के बीच में कहीं पे हम लोग रुके हुए हैं. अच्छा जगह लगा, थोड़ा शांत है, पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं. थोड़ा रेस्ट लेके फिर निकलेंगे, 10-15 मिनट रुकेंगे. इस बार थोड़ा हेक्टिक लग रहा है. गर्मियों में गए थे उतना नहीं लगा था हेक्टिक, लेकिन पता नहीं शायद कल रेस्ट नहीं मिला इसीलिए. स्कूल था ना डायरेक्ट एक दिन में हम लोग का. एनीवे, ठीक है, फिर रास्ते में मिलते हैं. फिलहाल हम बोतलबाड़ी के अंदर से घुस गए हैं. सो द रूट इज़ बंगाल टू बंगाल. जो नॉर्मल रूट है, इफ़ वी वुड हैव गॉन थ्रू NH12, it would have taken us through Bihar. We avoided that route, and this one is through villages and through rural Bengal. I will not have to go to the Odisha, not Odisha, Bihar part, and we'll be getting out at Islampur, I guess. Yes, Islampur. Around 10 kilometers are left to get out at Islampur. The road is not good. Parts of it is nice and newly made, and some part of it is full of potholes. So सब मिला जुला के ठीक ही है. हमारा एवरेज स्पीड 40 से ऊपर ही था. अभी जैसे आप देख ही सकते हो हम 50 से ऊपर ही जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता ठीक ठाक है. बीच बीच में कहीं कहीं गड्ढे हैं और कहीं कहीं थोड़े कंजेस्टेड एरियाज भी आ रहे हैं. ओवरऑल ठीक ठाक है. अगर आप बिहार वाले पार्ट को अवॉइड करना चाहते हैं तो इस रास्ते से जा सकते हैं. जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये बारिश के वजह से रास्ता ख़राब हुआ है. अदरवाइज़ देख ही सकते हैं, इस रूट से जाना इज़ नॉट अ बैड डिसीजन. हाँ, दरअसल
अब मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों ये वाला बोतलबारी वाला रूट लिया है. आई हैव हर्ड फ्रॉम मैनी पीपल कि बोतलबारी वाला रास्ता शुड बी अवॉइडेड आफ्टर सनसेट. देयर आर चांसेस ऑफ थेफ्ट एंड रॉबरी. And why I came through this? First of all, we are traveling through daytime period, and second of all is very recently, I have heard that the road, the portion of the highway which is going through Bihar is in a very bad shape. Very bad shape means literally I have heard people saying that if they by accident if they fall into a pothole, their vehicle axle may break down. So that's a serious concern. That's why I have somehow back of the mind I wanted to avoid that portion of the stretch. And Google Babaji, thanks to him, it has I don't know कहाँ से उसने सुन लिया मेरे मन की बात और उसने मुझे अंदर वाले रूट से ही लेके आया. कहीं ना कहीं जानने का भी इच्छा था कि ये रास्ता कैसा है. डे टाइम है तो जा ही सकते हैं. ठीक ही है. और कुछ ही देर में हम अभी 7.5 किलोमीटर करीबन बाकी है. हम इस्लामपुर से उठेंगे और वहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे NH27. फिर फुलबारी की तरफ मोड़ ले लेंगे और शिलीगुड़ी में बिना घुसे हम चले जाएंगे अलीपुर द्वार की तरफ. ओके, सो यही है अपडेट अभी तक के लिए. बोतलबारी वाले रास्ते को क्रॉस करके हमने इस्लामपुर के एग्जैक्टली मुझे जहाँ तक समझ में आया कि इस्लामपुर वाला रास्ता थोड़ा डाइवर्ट होके आपके बाएं तरफ चले जाता है, लेकिन हम उसमें नहीं जाके शिलीगुड़ी की तरफ दाहिने वाला रास्ता पकड़ ले रहे हैं. एंड यू कैन सी दिस रोड इज़ अमेजिंग. थोड़ी बहुत थकान थी जो वो फिलहाल इस रास्ते पे गाड़ी चला के मिट गई है. अच्छा लग रहा है. शाम लग तो रहा है जैसे शाम होने वाली है, बट अभी टाइम सिर्फ 3:30 बजे है, 3:40, बट लग रहा है जैसे शाम हो रही है. एक्चुअली दिस इज ऑटम सीजन, सो नाउ डेज आर बिकमिंग स्मॉलर, सो इट्स ऑब्वियस, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द हिल्स. सो हियर नाइट फॉल्स और सनसेट्स प्रिटी फास्ट, सो दिस इज राइट. सो इसके बाद अब हमारा अगला पड़ाव होगा, मैं अपने दोस्त से मिलूँगा, फिर वहाँ से मैं अलीपुर द्वार की तरफ मुड़ जाऊँगा. सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टूवर्ड्स अलीपुर द्वार. आई मेट माई फ्रेंड एंड नाउ गोइंग अहेड टूवर्ड्स. वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड द फुलबारी एंड नाउ गोइंग टूवर्ड्स Jalpaiguri. No, not sorry. My mistake. Not Jalpaiguri. Alipurduar. The roads are fine on some stretches, but on some stretches it's literally off-roading. कुछ जगहों में गाड़ी चलाने में लिटरली लग रहा है कि सैडलिंग करूं, क्योंकि इतना खतरनाक, इतना वेवी रास्ता है, जैसे लग रहा है समुंदर के लहरों में मैं गाड़ी चला रहा हूं. खतरनाक क्योंकि बाजू से बड़े बड़े ट्रक गुजर रहे हैं. सो एनीवे, अभी फ़िलहाल वो पॉइंट एक क्रॉस कर चुका हूँ और अभी घड़ी दिखा रहा है 5:32 और जीपीएस कह रहा है कि और 3 घंटे लगेंगे. सो करीबन 8:30 के करीब हम शायद अपने होटल में पहुँच जाएंगे. Let's hope that it stays like this and no further delays occurs. We'll take a 10 minutes break in between because to stretch, we have been driving since the morning,
so we'll need stretching in between. So रात के करीबन 7 बज रहे हैं, और should I say evening 7 o'clock, and we are around 65 kilometers, or let me see 63 kilometers away from our hotel. अब रुकना कहीं नहीं है, और इसके बाद होटल में सीधा रुकना है, क्योंकि डिनर का प्रिपरेशन भी करना है, और इस बार हम लोग थोड़ा यूनिक करना चाह रहे हैं. कि हम लोग अपना खाना खुद बनाएंगे, बाहर से कुछ ज़्यादा नहीं खाना है. ऑन द वे वाइल ट्रैवलिंग अगर हो सके तो हम लोग कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर खाएंगे, और पहाड़ी इलाकों में एज माय फेवरेट मोमो तो इज़ ऑलवेज वेलकम. अदर देन दैट हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना खाए, क्योंकि हमने अपना करीबन सारा इंतज़ाम, इवन स्टोव एंड गैस, द स्मॉल कैंपिंग स्टोव एंड गैस बर्नर, वो भी हमने ले लिया है. नॉट गैस बर्नर, सॉरी, गैस कैनिस्टर्स, इन सब का इंतज़ाम है. साथ में हमने बर्तन भी कुछ ख़रीदे हैं, कैंपिंग के जो बर्तन आते हैं ना फोल्डेबल, वो ख़रीद के रखे हैं. दिखाऊंगा आप सबको. फिलहाल तो नेक्स्ट आपको होटल पहुंचने से पहले फिर मिलते हैं. As you can see, we ran out of our luck. We got stuck in heavy rain. The condition was not at all suitable. I thought that within 1 hour we'll be reaching our hotel, because it was just 20 or 30 kilometers left to our hotel. But we had to stop 3 or 4 times. We have to take shelter because it was raining heavily, and not just normal rain, it was thunderstorm. Light conditions, there was no lighting on the highway, and roads were severely damaged, bridges were broken. Anyhow, we reached our hotel at around 9:30, and then we were damn tired. So time now is 11:30. We have all freshened up. बहुत थक गए. हम रात को करीबन 9:30 बजे एंटर किए होटल में. After checking it took around 1 hour to like settle up all things, open the luggage, wash my motorcycle, and we are damn tired. We ate something. We prepared some, like first of all we prepared coffee बनाने के बाद फिर थोड़ी मैगी बनाई, क्योंकि और कुछ मन नहीं कर रहा था. अब बहुत थक गए हैं, सो अभी सो जाते हैं. फिलहाल डिटेल्स कहाँ आए हैं अबाउट दिस होटल, ऑल आई विल गेट यू टुमारो मॉर्निंग. ओके, बाय बाय.